So this is gravitation lecture number 3, which is based on the variation of the acceleration due to gravity on the rotation of Earth. It's a very small topic, so we can wind it up. Ankit Sharma, regarding lectures, please contact Prashant sir, because it is available in the portal if I'm not mistaken. Only one part was missing due to some recording issue that day. So we have conducted the lecture, but recording did not take place that day. So I'm just inserting that. It's a very small topic. We will be finishing quickly. So gravitation lecture number 3, we have already seen what is the effect of variation of acceleration due to gravity because of height. We have already seen what is the acceleration due to gravity because of the altitude and so on. Yeah. Yes, Prathamesh, I'm feeling better now. Okay. Thank you for asking. So right now, today we will check about the variation. So I think some of you all must be having some notes. We have done this lecture. So let us see what is the variation of G due to the rotation of the Earth. So to understand this, first and foremost, to understand this concept, the concept of latitude has to be clear. And I hope that all of you know what is the latitude. So when you look at Earth, Earth कितने डिग्री पे झुका हुआ रहता है? कितने डिग्री पे Earth झुका हुआ रहता है? Anybody knows? You see the globe straight नहीं है. Yes, very good. Yatra, whoever this is, yeah. At how many degrees is the earth inclined? थोड़ा inclination पे earth को रखते हैं हम लोग. कितने पे होता है? Anybody? Only Yatra has said 23.5 डिग्री पे अर्थ झुका हुआ रहता है. कितना? 23.5 डिग्री पे अर्थ झुका हुआ रहता है. It's 23.5. So don't forget. Okay. So whenever we are talking about the earth, of course, this picture is in front of you. It is always there that this is the equatorial line. Equator एक ऐसा line है जो exactly विकास आपने देखा नहीं है, अर्थ कभी सीधा नहीं है. आपने ग्लोब नहीं देखा है? ग्लोब कैसे होता है? It's slightly tilted. थोड़ा बेंड होता है. इट इज नॉट स्ट्रेट. इट इज उसका जो एक्सिस है, जिस एक्सिस पे हम रोटेशन दिखाते हैं, वो थोड़ा सा बेंड होता है. दैट वन. सो इफ यू आर लुकिंग एट द अर्थ, इक्वेटर हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि अर्थ को वो एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करता है. राइट. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एन इक्वेटर. अर्थ को इक्वल पार्ट्स में जो कर देता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं. Now when you're looking at a particular picture of the equator, can I say like this line, अगर हम एक पूरा सर्कल ड्रॉ करें, is it forming a plane? Is it forming a plane? Can you imagine what I'm trying to tell you? क्योंकि ये तो 2 डायमेंशनल है. आपको 3 डायमेंशनल यानी कि आपको ऐसा सोचना है, अगर उसको काट दिया, इक्वेटर पे आपने एक चाकू से उसको काट दिया, तो आपको जो हिस्सा मिलने वाला है, दैट्स अ प्लेन. राइट. व्हाट यू गोइंग टू गेट इज नथिंग बट अ प्लेन. सो वो सरफेस एक प्लेन मिलेगा. राइट. एक संतरा ले लें, उसको आप काट देंगे. एक वाटरमेलन ले ले, आप उसको काट देंगे, तो आपको वहां जो मिल रहा है वो एक प्लेन है. सो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वी कैन कॉल दिस सरफेस एज अ प्लेन सरफेस. We can call the surface as a plane surface. Are you agreeing with me? और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, मतलब उस प्लेन सरफेस से अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया सरफेस पे, या मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये जो लाइन होगा, मान लेते ये एक लाइन है यहाँ पे, तो इससे इससे सेंटर की तरफ जो एंगल बनेगा, क्या वो चेंज होता जाएगा? Isn't this angle keeping on changing? Are you understanding what I'm trying to show you? अगर आप एक पॉइंट ले लेते हैं और फिर वहां से आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये उसके लैटिट्यूड्स होते हैं. समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे लैटिट्यूड्स होते हैं. मतलब अगर पोल पे पूछा मैंने लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड का जो सर्कल एंगल यहाँ पे जो लैटिट्यूड बनेगा, वो तो एकदम कम हो जाएगा. Are you getting what I'm saying? I'm repeating once again. Please pay attention.
Suppose I say this is the earth, right? Is the equator, right? So अगर हम बोलते हैं, let me draw it in our, suppose this is the earth that we are considering. We know that, say, this is the axis of rotation. So this diagram you can also draw. This is the axis of rotation. And let's say हम कहते हैं कि ये वाला जो प्लेन है, या यहाँ जो इक्वेटर है, इक्वेटोरियल जो प्लेन है, ये ऐसे जाए, इक्वेटोरियल प्लेन है. तो दिस इज आवर प्लेन सरफेस, ये अपना प्लेन सरफेस है. सपोज आई टेक अ पॉइंट एनीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहाँ पे पॉइंट ले लिया. अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया और सेंटर ऑफ द अर्थ, लेट मी कॉल द सेंटर ऑफ अर्थ एज O, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज P. तो क्या यहाँ पर एक एंगल बन रहा है? यानी कि ये पॉइंट जो है वो प्लेन सरफेस के साथ एक एंगल बना रहा है. उस एंगल को हम बोलेंगे डेल्टा, और डेल्टा को हम कहते हैं एज एंगल ऑफ लैटिट्यूड. क्या माना जाता है? एंगल ऑफ लैटिट्यूड. इसको एंगल ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं क्योंकि ये पॉइंट, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद, ये लाइन ड्रॉ कर सेंटर से ज्वाइन करने के बाद, we can take this and say that there is a circle that can be formed out here. So there is a circle which can be formed out here. You getting it? अगर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, समझो Q पॉइंट लिया, यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश करें आप, तो मैं सेंटर से लेके यहां तक, सपोज दिस इज Q पॉइंट, तो मैं सेंटर से लेके यहां तक ड्रॉ करूंगी और फिर यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगी. समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, लेट्स से X पॉइंट ले लिया यहाँ पे, तो उसको मैं सेंटर से ड्रॉ करूंगी और फिर यहाँ एक सर्कल आएगा. कैन यू सी द वेरिएशन ऑफ द सर्कल्स? तो जैसे हम ऊपर जाएंगे ये सर्कल छोटा 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 होते जाएगा. एग्रीड? बट एंगल ऑफ लैटिट्यूड बड़ा होते जाएगा. समझ रहे आ रहा है? एंगल क्या हो रहा है? बड़ा होगा ना. एंगल यहाँ इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम यहाँ पे लास्ट में पोल पे, आप बोलोगे यार एंगल तो 90 हो गया यहाँ पे. जब हम पोल पहुंचेंगे तो एंगल क्या है? यस, जितना हम डेल्टा लेते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो सर्कल बनेगा, तो आपका ध्यान P पॉइंट पर रहे, तो ये ब्लू वाला जो सर्कल ड्रॉ किया था मैंने, क्या हम बोल सकते हैं इस पॉइंट, ये सर्कल का हर एक पॉइंट का डेल्टा का वैल्यू सेम रहेगा? क्या हम बोल सकते हैं इस सर्कल के हर एक पॉइंट का डेल्टा का वैल्यू सेम रहेगा? यस और नो? यस. Are you getting it? मतलब सारे points on this circle will have the same latitude. Will have the same latitude हम कहते हैं. वो सर्कल जो बनती है, yes, प्लेन सरफेस आपका रेफरेंस प्लेन बन जाता है. ठीक है? और ये जो सेंटर से लेके वो रेफरेंस प्लेन्स तक, पॉइंट से लेके सेंटर तक का जो ज्वाइन किया है, एंड व्हाट इज दिस एंगल डेल्टा? इट इज टेकन विथ रेफरेंस टू सम प्लेन. दैट प्लेन इज नथिंग बट इक्वेटोरियल प्लेन. सेम रहेगा ना बेटा. अगर तुम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, एक पॉइंट को पकड़ के एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड सेम रहेगा. दिस इज व्हाट इज लैटिट्यूड लाइंस. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन. तो ये हर जगह पे 30-30 ही जाएगा ना. ये हर जगह पे 20-20 ही रहेगा ना. ये हर जगह पे 10-10 ही रहेगा ना. ये हर जगह पे 40-40 ही रहेगा ना. ये बता रहे. तो जब वैसा ड्रॉ करते हैं अलग दिखता है, जब ग्लोब पे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा दिखेगा. आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब क्या है? ये सेंटर से लेके ये पॉइंट तक 10 डिग्री है. ये पॉइंट अगर मैंने लिया, उसको ज्वाइन कर दिया, 20 डिग्री है. यहां से ज्वाइन किया तो 30 डिग्री है. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सबको? यस. यहाँ से लेके यहाँ ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ ड्रॉ करेंगे 40 डिग्री है. ये क्या होगा? 50 डिग्री होगा. ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, लास्ट में आप बोलोगे 90 डिग्री हो गया.
अभी क्लियर है क्या? जब हम वहां ड्रॉ करते हैं अलग दिखता है, यहाँ ड्रॉ करते हैं तो अलग दिखता है। अच्छा, मैंने अगर पूछा कि इक्वेटर पे लैटिट्यूड का वैल्यू कितना है, इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना होता है? 0, 0 डिग्री हो गया ना। और पोल पे कितना होगा लैटिट्यूड? पोल पे कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर हो गया क्या? लैटिट्यूड इमेजिन हो रहा है अभी। यस, देयर विल बी, कितना लैटिट्यूड्स तो क्या है, दे आर पैरेलल बेसिकली टू द इक्वेटोरियल प्लेन, यू नो। अर्थ के रेडियस के साथ जो एंगल बनता है उसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। अर्थ के रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है, डोंट थिंक अबाउट द रोटेशन राइट नाउ प्लीज, प्लीज डू नॉट थिंक एनीथिंग। मैंने सिर्फ लैटिट्यूड इमेजिन करने को बोला है, तो वहां तक ही आप इमेजिन करें। आगे आप सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टे विथ द टीचर, ऑलवेज स्टे विथ द टीचर। आगे नहीं जाना है, यू स्टे विथ अस, बिकॉज दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। तो अर्थ के रेडियस के साथ, अर्थ का रेडियस मतलब यही है ना, अर्थ के रेडियस के साथ जो एंगल बनाते हुए हम ऊपर जा रहे हैं, वो एंगल को हम लैटिट्यूड कहते हैं। यस, हम साथ साथ है, वही तो। रसिका के डायलॉग एकदम पॉपुलर हो रहे हैं अभी। सो एकदम जो अर्थ का जो रेडियस रहता है, उसके साथ हम जो एंगल बनाते हुए लेके जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड क्या है? पैरेलल लाइंस है। कैन यू इमेजिन? पैरेलल है वो अर्थ के इक्वेटर के प्लेन के साथ, वो पैरेलल है, वो ईस्ट टू वेस्ट रन करता है। आर यू गेटिंग इट? सो कुछ पॉइंट्स मैंने वो ज्योग्राफी के हिसाब से आपको यहाँ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स बता दिए लैटिट्यूड के, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है अपने को जानने के लिए। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट कंसेप्ट? लैटिट्यूड कैसा ड्रॉ किया, एंगल ऑफ लैटिट्यूड समझ में आया? या एंगल तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं नुसरत, आई मीन वो उससे कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज पॉइंट तो कहीं पर भी आप ले सकते हैं ना। सी, आई विल नॉट सिट एंड टेल यू 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यू नो, आई विल say 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, because we are not going to take some point which is very close or whatever it is, you know, you can take the point anywhere. So that's just you tell me 5 degree, I tell you 10 degree, we are both talking about two different points. Yeah. So now if you're going to look at this, we are going to look at, so that's why here, you know, some circles have been, you know, you must have heard about all this Arctic Circle and Antarctic Circle, and you must have heard about the equator, the Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer. So this is more of the physics, geography part, you know. But just to show you what a latitude is and how we have to think about what is the effect of the acceleration due to gravity if there is a mass which is kept over there at some point on the latitude. So अगर ये हमारा अर्थ है, and now we know we are taking some point, and say this is the axis of rotation. Suppose I take a point here, I'm taking a point here, let's call it as point P. Now you have to think, okay, अगर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, कोई भी कहीं पर भी हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ 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 पॉइंट लेते हैं, कहीं पर भी पॉइंट लेते हैं अराउंड द अर्थ, हमारा जो लीनियर वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी मतलब अगर हम वो पॉइंट पर एक मास कंसिडर कर रहे हैं, तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर वेलोसिटी? फिजिक्स में लीनियर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है?
Anybody? What is the formula for linear velocity? आपने पढ़ा है? What is linear velocity? Linear velocities are omega. Yes, very good, Nitin Pal. R omega linear velocity होता है. तो याद रखना लीनियर वेलोसिटी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है. लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम. यस और नो? कैपिटल आर. आप सोचो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं ये जो कैपिटल आर था वो छोटा होता जा रहा है. दिख रहा है क्या आपको? छोटा होता जा रहा है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? आपका जो आर है वो कम 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 होके जा रहा है. तो लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किधर है पूछा तो सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी कहाँ है? वेयर इज इट स्ट्रॉन्गेस्ट? लीनियर वेलोसिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द इक्वेटर. लिख के रखना ये चीज. लीनियर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किधर होता है? इक्वेटर पे होता है. और लीनियर वेलोसिटी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम कम होते जाती है. करेक्ट? यस और नो? विकास आप बाकी लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे क्या? ये वहां है ना. अदर चैप्टर्स हो चुके हैं ना क्लास. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर ओवर. यस. सो यू डोंट नो व्हाट इज लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी. लॉज ऑफ मोशन में कुछ नहीं पढ़ा है आपने. लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा रहेगा ना. लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके तो फिर मुझे अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा उसके लिए. इट्स गोइंग ऑन. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज ओके तो लीनियर वेलोसिटी आपका जो है वो सबसे ज्यादा किधर है? इट इज एट द इक्वेटर. ठीक है. या मोशन इन प्लेन एंड ऑल दैट. या ठीक है. ठीक है. अभी क्या होगा? से फॉर एग्जाम्पल आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए. ये आपका जीरो लैटिट्यूड है. जीरो लैटिट्यूड है ना यहाँ पे. और यहाँ पे इक्वेटर पे आपका लैटिट्यूड 90 डिग्री होता है. मैंने एक पॉइंट लिया है. सो आई एम टेकिंग अ पॉइंट and I am keeping a mass there small m. तो 100% ग्रेविटी की वजह से वहां एक फोर्स लगने वाला है. राइट? ग्रेविटी की वजह से वहां पर एक फोर्स लगने वाला है. और ये फोर्स जो इस पार्टिकल पर लगने वाला है ये हमारे प्लेन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है. आपको समझ रहा है अर्थ कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है. आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ऐसे घूमता है. दैट रेड लाइन को फॉलो करके. ये हमारा प्लेन ऑफ रोटेशन. तो अगर कोई चीज प्लेन ऑफ रोटेशन है, यू नो वी ऑलवेज से द प्लेन ऑफ रोटेशन is perpendicular to the axis of rotation. You agree with the statement? Plane of rotation is always perpendicular to the axis of rotation. ये आपको पता है. छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सोचना पड़ेगा. अगर ऐसा है तो ये बॉडी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. राइट? वो बाहर इट विल बी थ्रोन आउट. समझ रहा है? थ्रोन आउट. फुगड़ी खेला है कभी? फुगड़ी फुगड़ी खेला है कभी? जोर से फुगड़ी खेलो और फिर हाथ छोड़ दो. कैसे जाओगे आप? वैसे इमेजिन करो आप. यू विल बी थ्रोन आउट. टेंजेंशियली आप बाहर चले जाओगे. अच्छा किसी ने लिखा है हॉस्पिटल चले जाएंगे. वेरी गुड. नो बट देन इट्स लाइक यू नो आप एक टेंजेंशियली यू विल बी थ्रोन आउट. सो अगर एक प्लेट ले लेते हैं आप. प्लेट लेके आप उसके जहां पर उसको रखा गया है अगर ये पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग. ये आपका सेंटर है और ये जो है दिस इज नथिंग बट डेल्टा. डेल्टा क्या होता है हमारा?
एंगल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब दैट इज इंपॉर्टेंट टू अस। सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करूं, द फॉर्मूला इज mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करूं तो द फॉर्मूला इज mv²/r, आपने पढ़ा रहेगा, राइट? सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वजह से चीजें रेडियली बाहर चली जाती हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ ये पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स इधर होगा, रेडियली आउटवर्ड फोर्स इधर होगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? देखो देखो, अभी जिसको नहीं समझा है, देखो ये वाला अपना कैपिटल आर है, क्या ये पॉइंट पी पर रेडियस कैपिटल आर है क्या? मैंने क्या समझाया था इधर, याद है? इधर क्या समझाया था? आर कम होता है कि नहीं, आर चेंज होता है कि नहीं? आर इज नॉट सेम एवरीवेयर, इसका मतलब इसका जो आर है, ये आर यहाँ है। So when I say that it is going to be thrown out radially, so it will depend on this small r or capital R, it will depend on small r, बिकॉज लैटिट्यूड हर जगह पे अलग है, उसका आर भी हर पॉइंट पे सरफेस पे अलग है, हमने लैटिट्यूड इसीलिए आपको सिखाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m r ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड चला जाएगा, और ये r क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ रोटेशन जो हम हमारे कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं। और कैपिटल आर क्या है, अर्थ रेडियस, अर्थ का रेडियस, ये क्या है, ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस और नो? हमारा लैटिट्यूड का एंगल क्या है, एट द इक्वेटर इट इज 0 डिग्री और लैटिट्यूड का एंगल इधर है 90 डिग्री। अगर यहाँ पर कोई मास है, अगर यहाँ पर कोई मास है पी पॉइंट पर, तो 100% वहां पर mg फोर्स लगेगा। डू यू एग्री? mg फोर्स लगेगा, अर्थ खींचेगी, तो mg फोर्स तो होगा ही, टेकिंग ट्राइंग टू पुल इट टुवर्ड्स द सेंटर। तो डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? अभी डायग्राम में क्या क्या ड्रॉ किया है मैंने, 0 डिग्री इक्वेटर के लैटिट्यूड का एंगल है, 90 डिग्री पोल पर लैटिट्यूड का एंगल है, रोटेशन है, प्लेन ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर या 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैंने एक पॉइंट ले लिया है P, और वहां पर मैंने वो जो बॉडी रहेगा इट विल एक्सपीरियंस एक फोर्स तो mg लगेगा जो अर्थ की तरफ होगी, F इज इक्वल टू mg, जो अर्थ उस मास को खींचने की कोशिश करेगी। ड्यू टू रोटेशन वो पार्टिकल को बाहर भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो बाहर उसको फेंकने की कोशिश करेगा, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्लीज टेक इट डाउन। Please take it down. Yeah, I'll wait for you. Yeah, I'll give you 3 minutes.
Please tell me when the diagram is done. सबका हो गया? Everyone has completed? ओके अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं. आर यू रेडी? सो हम देख रहे हैं कि वो पॉइंट पी पर अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पर कोई भी मास रखते हैं तो हमने दो चीजें देख ली. एक फोर्स इज इक्वल टू mg लगेगा. एक क्या लगेगा? फोर्स इज इक्वल टू mg लगेगा. दूसरा क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उस पर लगता है विच इज mr ओमेगा स्क्वायर. अब ध्यान से इस डायग्राम की तरफ ध्यान देना और मुझे बताओगे आप कि ये एंगल कितना है. ये एंगल कितना है? अगर ये आपका स्मॉल आर है, ये एंगल कितना होगा? वेरी गुड. डेल्टा होगा. डू यू ऑल एग्री? कौन सा एंगल होगा? वो डेल्टा होगा. तो ये वाला जो है वो बन गया आपका डेल्टा. ऑल्टरनेट एंगल्स. वेरी गुड. ऑल्टरनेट एंगल्स होगा. नाउ ओके ओके ठीक है. अब इस पॉइंट पर तो हमने अभी कितना फोर्सेस देखा है? दो है. अब इसी पॉइंट पर हमें ये जो mg है इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगता है. ये जो mg है इसके इक्वल और ऑपोजिट में एक दूसरा फोर्स लगने वाला है. अब वो कितना है आपको यू हैव टू टेल मी हाउ मच इट विल बी. और एक दूसरा फोर्स है जो टेंजेंशियली भी इस मास को इफेक्ट करेगा. एक दूसरा फोर्स है जो टेंजेंशियली भी, देखो आप वो पॉइंट पी के अराउंड ही खेल रहे हैं हम लोग. एक mg वाला फोर्स है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक mg के ऑपोजिट वाला है, एक टेंजेंशियल है. कोई मुझे बताएगा अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? यस कार्तिक, सप्राम, दिव्याम. ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है. ये भी डेल्टा है. वेरी गुड. अगर वैसा है, आई होप द क्लास इज विथ मी. अगर ऐसा है तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? कैन आई से इट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा या कॉस डेल्टा. बोल सकते हैं उसको. कॉस कंपोनेंट होगा वो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ डेल्टा. आई होप एवरीवन एग्रीज. यू आर विथ मी इन दिस. आप मेरे साथ हैं. मुझे कैलकुलेशन में स्मॉल आर ढूंढना है. मुझे कैलकुलेशन के लिए स्मॉल आर ढूंढना है. अब आप ध्यान से देखो मैं क्या बोलूं. मुझे स्मॉल आर ढूंढना है. ओके स्मॉल आर ढूंढना है मुझे. ये जो लाइन है, ये जो यहाँ ड्रॉ किया गया है, ये इसका इसका वैल्यू क्या है? ये वाला जो पॉइंट ओ से लेके पॉइंट पी तक ड्रॉ किया है, क्या ये कैपिटल आर है? यस. रेडियस है. रेडियस ऑफ अर्थ है. अच्छा तो व्हाट इज कॉस ऑफ डेल्टा लुकिंग एट दैट ट्राइंगल? अगर मैं ओ पी इसको एक्स मान लेते तो अगर मैंने ट्राइंगल समझा है ओ पी एक्स, अगर मैंने ट्राइंगल ले लिया है यहाँ पे ओ पी और एक्स, ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पर मेरा कॉस ऑफ डेल्टा का क्या आएगा? व्हाट इज कॉस ऑफ डेल्टा? वेरी गुड रसिका. कॉस ऑफ डेल्टा क्या आएगा मुझे? कैन आई से कॉस ऑफ डेल्टा इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर? बोल सकते हैं. कॉस ऑफ डेल्टा इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. एग्रीड?
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस वही वही लिखा ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कैन आई से देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू कॉस ऑफ डेल्टा। अभी स्मॉल r को मैंने कैपिटल R के टर्म्स में लिख दिया। व्हाट इज स्मॉल r? कैपिटल R कॉस ऑफ डेल्टा। यस, यहां तक समझा सबको? स्लोली जा रहे हैं बिकॉज डेरिवेशन है, स्लोली जा रहे हैं बट समझ के चलना है, ठीक है? अब जो भी इंट्रोड्यूस करना है, जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया उसको लिख दो फटाफट। हाँ हाँ नुसरत, रेडियस कभी कम नहीं होता है, नॉट रेडियस, रेडियस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ अर्थ अलग है और रेडियस ऑफ रोटेशन अलग है, आप दोनों को सेम मान रहे हैं। वो जो लैटिट्यूड वाला है ना सर्कल, वो लैटिट्यूड वाले सर्कल अलग है, वो छोटा छोटा होते जाता है जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो छोटा आर जो है वो लैटिट्यूड का सर्कल वाला आर है। रेडियस ऑफ अर्थ तो सेम ही रहेगा ना बेटा। अर्थ छोटा छोटा नहीं हो रहा है ऊपर, टॉप नहीं बना रहा इधर। अर्थ इज नॉट अ टॉप, अर्थ इज अ सर्कल, राइट? तो आपका इमेजिनेशन चेंज करो अभी, ठीक है? स्मॉल आर और कैपिटल आर में डिफरेंस समझो। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल आर क्या बोला था मैंने आपको? स्मॉल आर वो है, yes, no, it's geoid actually, na, it's a geoid shape. Please make the construction in your book. I think because it is understood, that depends on how you're drawing. Yeah, radius of earth is 6400 kilometers, 6400 kilometers. Ankit, I think you please contact Prashant sir regarding this. I think I've made it very clear that gravitation chapter has been taught once. I know that I have taken online lecture once, and I'm sure today it's a mixed who was sitting. So ऐसा हुआ था कि दो लेक्चर हुए थे, उसमें एक जो है व्हाइट बोर्ड पे सिखाया गया था और दूसरा वाला जो मैंने पूरा लेक्चर लिया था, बट इट डिड नॉट, देयर वाज सम एरर इन माय सिस्टम दैट टाइम, आई मीन आई लॉस्ट माय डेटा बेसिकली, ओके।
तो वो दिनों कैसा था कि इनिशियल जूम लेक्चर्स होते थे, तो आई वाज नॉट मेरा सिस्टम डाउन हो गया था, जूम में क्रैश हुआ था वो, मेरा पूरा सिस्टम ही डाउन हुआ था, उसमें मेरा डेटा चला गया, इसलिए आई एम टेकिंग इट अगेन. Yeah, so regarding this lecture thing, don't discuss with me. Please discuss with Prashant sir. Yeah, because he's in charge. So I think it is better you talk to him. I'm understanding what you're saying, but I am not the person to talk to. I can only teach physics. मेरे को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो फिजिक्स है. ठीक है, ये जो टाइम टेबल वगैरह है, ये सब आप हायर अथॉरिटी से पूछे. ठीक है, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r cos ऑफ डेल्टा. Small r is equal to r cos of delta. Can I proceed, everyone? Okay. अब इस डायग्राम को देख के आप मुझे बताएं, इस डायग्राम को देख के आप मुझे बताएं, इस डायग्राम को मैं एक एक काम करती हूँ. ओके. अब इस डायग्राम को देखकर आप मुझे बताएं, इस डायग्राम को देखकर व्हाट इज द नेट फोर्स. इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे, सो व्हाट इज द नेट फोर्स. ओके, सोच के बताना. व्हाट इज द नेट फोर्स acting towards the center of earth. What is the net force acting towards center of earth? What is the net force acting center of earth? हमें subtract करना पड़ेगा. एग्री करते हैं आप? हमें subtract करना पड़ेगा. जीरो का भाई कुछ भी बोलते हैं यार तुम लोग, हर चीज जीरो या 90 नहीं होती. नेट फोर्स अगर आप देखेंगे, एक जो है mg है, जो सेंटर की तरफ आ रहा है. वी आर कंसिडरिंग पॉइंट P. नेट फोर्स बोला, नेट चार्ज बोला, नेट, ये आप खुश हो जाते हो, आप जीरो बोल देते हो. अब आए थोड़ा सोचने का. हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट P. यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस. हर चीज ऐसा नहीं होता. यस, वेरी गुड. गीता गुप्ता ने वो लिखा है. डिफरेंस निकालना पड़ेगा हम. तो डिफरेंस निकालते टाइम वो क्या होने वाला है? mg, it will become mg minus mr omega square cos of delta. क्या होगा? mg minus mr omega square cos of delta. And the net force which is acting towards this can be further written as mg minus m. अभी ये छोटा r क्या है अपना? छोटा r, कैन आई से इट इज r cos of delta, जो मैंने अभी अभी cos से निकाला यहाँ पे. यस और नो? इनटू ओमेगा स्क्वायर cos of delta. तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? mg माइनस m r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ऑफ डेल्टा. यहां तक समझा? लिख सकते हैं ऐसा. स्मॉल r के बदले लिखा r cos ऑफ डेल्टा, तो ये इक्वेशन आ जाता है. अंडरस्टूड? यस. सो स्मॉल r के बदले हमने जस्ट वहां सब्स्टिट्यूट किया है कैपिटल R cos ऑफ डेल्टा. नाउ द नेट फोर्स, फोर्स क्या होता है? m इंटू जी होता है. What is net force? m into g होता है. So can I write here this force on the left hand side
is m into g of delta, right? Delta matlab the net force acting towards the center of the earth. Can I say this mg is nothing but towards the surface? Can I say it is towards the surface? Because mg is coming towards the surface, तो उसको हम gs लिख सकते हैं. तो हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या कॉमन निकल के कैंसिल हो सकता है? क्या निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ? नुसरत, द नेट फोर्स, फोर्स क्या होता है? m इंटू जी होता है ना. So the net force, which is mg minus this, needs to be given some name, right? So we have given it as mg only, but the g is because of delta, because हम इस बार रोटेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं आज. तो हमारा g अलग होगा ना. हमारा g आज हम रोटेशन लैटिट्यूड के एंगल पे लिख रहे हैं, इसलिए हमने g को सफिक्स डेल्टा दिया. m कॉमन निकलेगा. अगर m कॉमन निकला तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट दिस कैन बी रिटन एज g delta can I write this as g delta is equal to gs minus m तो कट गया r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा. क्या लिख सकते हैं ऐसा? यस. इस एक्सप्रेशन को बॉक्स में डालो. इस एक्सप्रेशन को बॉक्स में डालो. जीएस इज बेटा सरफेस. आप भूल गए क्या? जीएस इज सरफेस वाला हमने लिखा है ना. जीएच, जीडी, जीएस, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, लेक्चर्स 1 एंड 2. 2 को देख लो फिर 3 समझेगा. हमने देखा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और ड्यू टू डेप्थ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू बीइंग ऑन द सरफेस, एंड फिर हाइट, अल्टीट्यूड, फिर हमने तीनों को कंपेयर किया था, अगर आपको याद है. ओके, नहीं है तो वापस रिविजिट करो सेकेंड लेक्चर, ठीक है. नाउ यू टेल मी, ये एक्सप्रेशन है आपके सामने. ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू लैटिट्यूड है, मतलब जी डेल्टा, कैन एनीबडी टेल मी व्हेन विल जी डेल्टा बिकम इक्वल टू जीएस? व्हेन विल जी डेल्टा बिकम इक्वल टू जीएस? When will G delta become equal to GS? मेरे पास बहुत सारे आंसर आ रहे हैं. सेम एंगल एट पोल एट इक्वेटर, मुझे पता नहीं आपको क्या मैं बोलूं अभी. कॉस कब जीरो होने वाला है? कॉस कौन से एंगल पे जीरो होता है? 90 पे जीरो होगा. 90 कहाँ है? हमारा लैटिट्यूड का एंगल कहाँ 90 है? डायग्राम में भी आपको 10 बार समझाया. पोल पे 90 है. पोल पे 90 है, बराबर ना? आपको बताया गया था एट पोल डेल्टा इज 90. जब पोल पे रहेगा ये पॉइंट, मतलब मास को हमने कहाँ रखा? अगर हमने कोई भी मास को हमने पोल पे रखा, तो आप लिख दो यहां पर एट पोल्स. एट पोल्स जी डेल्टा इज इक्वल टू जीएस. at the poles G delta is equal to GS. And at all the other locations, for all other locations, you have to take this only. For all other locations, you have to take this formula only. Please take it down in a box, everybody. At the pole, the G delta becomes equal to GS. At the pole, the G delta becomes equal to GS. Everywhere else, it will remain same.
तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे दिस व्हेन वी आर टेकिंग दिस फुल इक्वेशन, कैन आई से दैट टाइम द जी और द डेल्टा इज लेस देन 90. यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 90, वहां पे मेंशन करके रखें. जब भी डेल्टा लेस देन 90 होगा तो वो इक्वेशन यूज करना है. एट द पोल होगा तो जी डेल्टा बिकम्स इक्वल टू जीएस. यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है, एट द पोल हमारा जी का वैल्यू सरफेस के वैल्यू के बराबर हो गई. समझ में आ रहा है? At the pole, the acceleration due to gravity is becoming equal to the acceleration due to gravity on the surface of the earth. Acceleration at the pole, acceleration due to gravity at the pole किसके बराबर हो रही है? Acceleration due to gravity at the surface के बराबर हो रही है. एंड ये कहाँ हो रहा है? Only at the poles. Please take this slide completely down, everyone. I'm giving you 2 minutes. महक, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट नहीं करते क्या? वेक्टर्स, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है तो दोनों का हम नेट लेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बेटा. एक नीचे की तरफ है, दूसरा ऊपर की तरफ है ना. Can I ask you all a question? Can I ask you all a question? Due to rotation of the earth, ध्यान से सुनो. Due to rotation of the earth, at which point is G delta minimum? At which point is G delta minimum due to the rotation of the earth? I'm going to give you 2 minutes. I want the entire class to answer. ओके, वेरी गुड. तो सब लोगों ने आंसर किया है कि सबसे मिनिमम होता है इक्वेटर पे. सबसे मिनिमम कहाँ हो रहा है? इक्वेटर पे. वेरी गुड. तो हम एक कंक्लूजन स्टेटमेंट की तरह ऐसा लिख सकते हैं. अब देखो मैं क्या लिख रही हूँ. आई विल राइट
just what you have said I'm writing, you can write it to G delta is minimum where cos delta is maximum. Agreed, everyone? G delta is minimum where cos delta is maximum. Cos delta is maximum when delta is equal to 0. And where is that? It is at the equator. It is at the equator. अगर ऐसा है, it is at the equator and it is minimum. Okay, so everyone has understood that much कि वो minimum होने वाला है. अभी अगर ऐसा है, that means at the equator your G of delta is, can we remove that formula? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, G of delta के बदले मैं लिख रही हूँ equator, you can also write G of delta के बदले मैं लिख रही हूँ equator, क्योंकि मुझे वो वैल्यू फाइंड आउट करना है. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इस इक्वेशन में cos डेल्टा को 1 ले रहे हैं हम लोग, cos स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया है बिकॉज डेल्टा 0 ले रहे हैं. तो G of the equator is equal to G of the pole. Is it okay if I write like that? Is it okay if I write like that? Because मेरा G of delta becomes equal to, say, at the poles. So G of pole minus R of omega square. चलेगा अगर ऐसे लिखा तो? मतलब ये GS जो है उसको कभी पोल भी बोल सकते हैं. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको GS ही लिखते हैं, नो प्रॉब्लम. क्या क्या कैन वी राइट लाइक दिस? हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, राइट? प्लीज राइट दिस इक्वेशन. G of equator is G of S minus R omega square. Please write it down. ओके, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ. अगर मैंने अर्थ के रोटेशन को चेंज किया, अगर मैंने अर्थ के रोटेशन को चेंज किया, तो कौन से पॉइंट पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा? अगर मैंने अर्थ के रोटेशन स्पीड को चेंज किया, मतलब मैंने अगर ओमेगा को चेंज कर दिया. वेरी गुड दिव्या, हिमांगी, गीता. तो कहां पर असर नहीं पड़ेगा? पोल पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि when I'm saying I'm changing the rotation, that means I'm talking about omega, right? Angular. तो एंगुलर स्पीड अगर मैं चेंज करती हूं तो ऑब्वियसली बाकी सब जगह पे इफेक्ट पड़ेगा. इक्वेटर पे पड़ेगा, बट कहाँ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पोल पे नहीं पड़ेगा. ये नोट करके आप लिख दें. इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बिकॉज we are not going to, but in case that changes, then where it will not change, it should click you. पोल पे चेंज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पोल के फॉर्मूला में ओमेगा नहीं है. हमने क्या देखा? पोल के फॉर्मूला में बिल्कुल भी ओमेगा, एट द पोल्स G डेल्टा इज इक्वल टू GS, फॉर्मूला में ओमेगा नहीं है, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा. सो ये आप अपने हाथ से लिख दे, नोट करके लिख दे, मेंशन कर दे उसको, मेंशन कर दे उसको कि if we change the rotation of the earth, then G delta does not change at the poles. If we change the rotation of the earth, then G delta does not change at the poles. Have you written it?
अच्छा, कुछ लोगों को रिपीट करना है। इफ वी चेंज द एंगुलर स्पीड ओमेगा, if we change the angular speed omega, then there will be no change at the poles. Then there will be no change at the poles. बट बाकी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड का एंगल हर जगह पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, राइट? बट कहां पर असर नहीं पड़ेगा? पोल पर असर नहीं पड़ेगा। कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि g ऑफ द इक्वेटर इज g ऑफ s माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हम ओमेगा को इतना कर सकते हैं, स्पीड को इतना कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है, जो इक्वेटर पे रखा है, वो वेटलेस हो जाएगा? आई रिपीट वंस अगेन, क्या हम ओमेगा को इतना कर सकते हैं, इतना बढ़ा सकते हैं, इतना ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज इट इज जीएस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हम ओमेगा को इतना बढ़ा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो इक्वेटर पे रखा गया है वो वेटलेस हो जाए, वेटलेस हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? यस या नो? You know when an object will become weightless? When will an object on the surface of earth become weightless? सोचो ना, आपको वेटलेस फीलिंग कब आएगा? एनीबॉडी? लेट मी सी हु इज द थिंकिंग वाला इधर। हम कब बोल सकते हैं कि कोई भी चीज, यस वेरी गुड, वेरी गुड, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि वहां पर वो ऑब्जेक्ट वेटलेस फील करेगा? डू यू एग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग? इसका ये मतलब है कि अगर आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी एस के बराबर हो गई, तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू इक्वल हो गए, तो क्या हम बोल सकते हैं जी एट द इक्वेटर विल बी 0? कोई भी ऑब्जेक्ट को इतना हमने स्पीड दे दिया कि आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मान लो एक 50 आया या जो भी आया, अगर वो जीएस के कंपैरिजन में इक्वल हो गया, तो दो चीजों की वैल्यू जब इक्वल होगी और बीच में माइनस साइन लगेगा, तो क्या हम बोल सकते हैं जी एट द इक्वेटर इज 0? आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ इट? यस, हर चीज को समझ के करना है, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग जब एमसीक्यू करने जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हमने ओमेगा को बढ़ा के इसको इतना कर दिया कि इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं द बॉडी बिकम्स वेटलेस। तो वो आप खुद लिखें वहां पे, when r omega square, if r omega square becomes equal to g of s, ये gs के बदले g poles भी आप लिख सकते हैं। If it becomes equal to the g of s or g at the poles, then we can say that the object has become weightless. Please write this down. Please write this down.
Can you hear me? Yeah. So if weightless condition हमें देखना है तो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता, यू अंडरस्टैंड, बट हम लोग सोच रहे हैं अगर ऐसा होता कि ओमेगा की स्पीड बहुत ज्यादा होती, अर्थ एकदम सॉलिड स्पीड पे रोटेट होती, इमेजिन करो, तो आपके साथ क्या होता? और अगर जीएस इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर हो जाता, आपके साथ क्या होता? आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा? क्या होगा? आई वॉन्ट द रियल फैक्ट। आप खुद सोच नहीं रहे हो, गायब हो जाओगे। इनविजिबल की कौन बात कर रहा है? वेरी गुड सानिया, वेरी गुड। सानिया बोलते हैं उड़ेंगे, महक बोलती है उड़ेंगे। यस, किसकी वजह से उड़ेंगे? किसकी वजह से उड़ेंगे? अगर आपने पहले लेक्चर के पहले से आपने अच्छे से सुना है, किसकी वजह से उड़ेंगे? बिकॉज ऑफ विच फोर्स विल यू फ्लाई? बिकॉज ऑफ विच फोर्स विल यू फ्लाई? आपको बाहर मैंने फुगड़ी क्यों समझाया था? सेंट्रीफ्यूगल, वेरी गुड। अभी आप सबको कोरिलेट करो। अगर ओमेगा ज्यादा हुआ, स्पीड ऑफ अर्थ ज्यादा हुई और आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जीएस के बराबर हो गई, तो क्या होगा? आपका वेटलेस फील होगा। अगर आप वेटलेस फील करोगे, कहां पर चल रहा है ये सब? हम इक्वेटर पे देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं हम लोग? इक्वेटर पे हमारा फॉर्मूला जीएस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर है। वी आर एट द इक्वेटर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वेटर। वहां पर कौन आपको बाहर की तरफ खींच के आपको उड़ा देगा बाहर? वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस और नो? हम इक्वेटर पे हैं। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मतलब मैं घुमा फिरा के आपके ब्रेन को टॉर्चर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप उस कंसेप्ट को समझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कि बाकी सब जगह पे एंगल भी है। हम इक्वेटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इक्वेटर पे वहां का एक ही डिसाइडिंग, आर तो कांस्टेंट है ना, कैपिटल आर तो 6400 किलोमीटर, वो तो चेंज नहीं हो सकता। और अगर हमें ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करना है ऐसे कंडीशन में, कोई भी एमसीक्यू में ऐसे पूछ लिया, तो आपके पास जीएस का वैल्यू तो है ही 9.8, आपको पता ही है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। कैपिटल आर का वैल्यू तो है ही आपके पास, दैट इज 6400। तो हम वहां से ओमेगा निकाल सकते हैं कि नहीं, वैसा पूछ रही हूँ आपको। निकाल सकते हैं कि नहीं? हम ओमेगा का वैल्यू 100% निकाल सकते हैं। बट क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? क्या ये हो रहा है अर्थ के सरफेस पे? तो आंसर है नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग, इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट वो वेटलेस, वो जो कंसेप्ट होता है कि वेटलेस फील होना क्या होता है, वो कंसेप्ट अभी समझ में आ रहा है? कोई भी चीज को अर्थ के इक्वेटर पे अगर वेटलेस फील करवाना है, तो आज कंट्रोल आपके हाथ में मैंने दिया है कि घुमाओ अर्थ को, घुमाओ, इतना इतना घुमाओ, इतना घुमाओ, इतना घुमाओ कि हमारी जो जीएस की वैल्यू है वो आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो ये ऐसा हो जाएगा फिर कि आप वेटलेस फील करोगे, आप उड़ जाओगे, फ्लाई टू मास। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चीजों को कोरिलेट करना सीखो, कोरिलेट करना सीखो। यस। तो जिसको लिखना है वो फटाफट लिख दे, जो मैंने बोला है आप लिख सकते हैं। सो हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? तो एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकेंड, और हाउ मेनी साइकिल्स पर मिनट, और हाउ मेनी साइकिल्स पर डे हमें देखना पड़ेगा अर्थ की रोटेशन। समझ रहे ना? साइकिल पर डे बोला तो कितने साइकिल पर डे पे अभी चल रहा है? कितना साइकिल चल रहा है अभी पर डे?
रोटेशन कैसे चल रहा है, हाउ मेनी साइकिल्स, यस वेरी गुड राज यादव, 1 साइकिल पर डे चल रहा है। तो कितना साइकिल पर डे करना है ताकि एक आदमी, सो दैट द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द इक्वेटर बिकम 0, ये उसका आंसर मैंने आपको बताया है। एनसीईआरटी में एक ऐसा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी साइकिल्स पर मिनट और हाउ मेनी साइकिल्स पर डे, यानी कि ये ओमेगा की बात हो रही है, साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर मिनट, साइकिल पर डे, मतलब किसकी बात हो रही है, ओमेगा की बात हो रही है। यस और नो, ओमेगा की बात हो रही है। कितना ओमेगा होना चाहिए ताकि एक आदमी जो इक्वेटर पे खड़ा है, ही विल एक्सपीरियंस 0 वेट, ही विल एक्सपीरियंस 0 वेट, ये पूछा गया है। So you will be able to solve this kind of question, I believe. Yes. So this is the concept of the variation due to the rotation of Earth, that is because of the latitude changes. Easy लगा? Easy लगा आपको? Latitude का angle change होगा तो वो हमारे डेल्टा पे असर करेगा, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से हमारे डेल्टा पर असर करेगा। और अगर डेल्टा पर असर करेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू दैट रोटेशन पे असर करेगा। ओनली एट द पोल्स कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज वहां डेल्टा हमारा कंप्लीटली क्या हो गया है, 90 डिग्री हो जाता है। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 3 पे जो आपको सिखाया गया था। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर लेक्चर नंबर 4 से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, एनी डाउट। अच्छा, नाउ बिफोर आई कंक्लूड, आई जस्ट वांट टू, जी डेल्टा तो बेटा ड्यू टू रोटेशन है ना, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सबने देखा है। अगर आप अर्थ के बारे में सोचे तो क्या हम बोल सकते हैं ये इक्वेटर पॉइंट है और ये पोल पॉइंट है, तो दोनों में वो कौन सा पैरामीटर है जो सेम है, दोनों में वो कौन सा पैरामीटर है जो सेम है? व्हाट इज सेम फॉर इक्वेटर एंड अर्थ? यस, कैपिटल आर। यहां पर भी आर सेम है, यहां पर भी आर सेम है। इसलिए हमारे जब हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे तो रोटेशन के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि पोल्स और अर्थ पर ऑलमोस्ट क्या होता है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अभी आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, एज अ फिजिक्स पर्सन, एज अ ज्योग्राफी पर्सन, डू यू थिंक, मैथमेटिकली तो हम बोल रहे हैं कि कोई चेंज नहीं है, बट क्या थोड़ा बहुत चेंज होता है, हो सकता है, मतलब एज अ ज्योग्राफी पर्सन, व्हाई? बहुत सारे जन ने यस आंसर किया है चैट बॉक्स में, क्यों? वेरी गुड अभिषेक गुप्ता, वेरी गुड। अभिषेक कहता है यस, सानिया वेरी गुड, यस।
क्यों? क्योंकि यस महक, वेरी गुड, यस भक्ति, यस रसिका, रोटेशन की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, रोटेशन की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, रोटेशन के हिसाब से तो हमने अभी, हाँ, हमने अभी मान लिया कि पोल पे और जो इक्वेटर पे है वो ऑलमोस्ट सेम, मतलब जीएस सरफेस पे है, वो सब इक्वल है, बट कैन आई से बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, because it is slightly flat at the poles and slightly bulging at the equator, there is variation. अगर हम रोटेशन की बात नहीं करें तो, अगर हम रोटेशन की बात नहीं करें और इस फॉर्मूला के हिसाब से जाए, दैट इज कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूला से जाए, तो ऐसा लगता है कि जैसे पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इक्वेटर पे सेम है, बट अगर हम लोग थोड़ा और सोचे एज अ फिजिक्स पर्सन, एज अ ज्योग्राफी पर्सन, हम बोल सकते हैं कि वहां पे सेम नहीं है भाई, क्योंकि इट इज स्लाइटली बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. आर यू गेटिंग इट बेटा? सो कौन सा वाला रेडियस एक्चुअली कम होता है? हम बोलते हैं कि अर्थ थोड़ा एसेंट्रिक है या अर्थ थोड़ा जियोइड है, तो कौन सा वाला रेडियस कम होता है? So can I conclude? No, I wasn't saying anything. Yeah, I know I was on mute. I wasn't saying anything. I was just saying, so can we say that because of even the shape of Earth, the G can vary, right? G changes due to depth, G changes due to altitude, G changes due to height, G changes due to rotation. Can I say that even due to the shape of the Earth, by the formula given to you, can I say radius of pole से जो radius है वो कम है? अगर रेडियस कम है तो डिनोमिनेटर का आर कम है तो जी ज्यादा होगा. तो क्या हम बोल सकते हैं, तो यानी कि अगर एमसीक्यू में पूछा कि कौन से कंडीशन पे जी एट द पोल इज ग्रेटर देन जी एट द इक्वेटर, व्हाट इज द आंसर देन? ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ which is slightly flat at the pole and slightly bulging at the equator, I can say that the radius at the poles जो R consider करेंगे वो थोड़ा सा कम होगा, राइट? एसेंट्रिक सॉर्ट ऑफ होगा ना, जैसे आप माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस बोलते हैं, राइट? अगर आपने पढ़ा है
तो हम बोल सकते हैं कि छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं स्मॉल g की वैल्यू पोल पर ज्यादा होगी। ये क्लियर है? अब आप अगर सेकेंड और थर्ड लेक्चर साथ में पढ़ेंगे तो आपके सारे कंडीशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अर्थ के फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो जी को इफेक्ट करते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ रहे हैं? जब भी आप वेरिएशन ऑफ जी पढ़ते हैं तो आप सेकेंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर साथ में सुने, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो पोर्टल पे लगा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो लेक्चर नंबर 4 है, तो वो करेक्ट हो जाएगा आज। ठीक है, तो मैं ये भेज दूंगी, और फिर ये लेक्चर 3 है, और लेक्चर 4 फिर कंटिन्यूएशन में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? आई होप अभी थोड़ा सा जिसको लग रहा था कि ये मिस हो गया, अभी आपको वापस मिल गया। आपको आई होप ये डेरिवेशन, ये कंस्ट्रक्शन जो मैंने दिखाया आपको, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज पढ़ ले। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।